Hello my dear students, how are you all? Welcome back to Archana Academy. So students, in this video we are going to do a very important law in your microeconomics, and that is law of diminishing marginal utility, or in short we call it DMU. Students, in the previous two videos we have done the concepts of utility. What is utility? What is TU? What is MU? How MU is calculated? What is the relationship between TU and MU? Those who are watching my video for the first time, I would like to suggest them go through those videos also. Only then all the concepts related to this utility will be clear to you. So let us start. Law of diminishing marginal utility. Let us first read what the law is stating. As per the law, as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. So, what the law is stating, जो law है वो क्या कह रहा है हमारा, कि जैसे जैसे हम एक commodity की एक यूनिट बाय 1 यूनिट उसका कंजम्पशन हम इंक्रीज करते जाएंगे, कंजम्पशन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, the utility that we get from successive unit, हर successive unit से जो मिलने वाली utility है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो decrease हो जाएगी. Consumption is increasing and the utility derived from those units will go on decreasing. So this is a simple law. जैसे जैसे हम consumption बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस same unit से same commodity की हर successive unit से मिलने वाला consumption बढ़ने के साथ हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. फाइन. सो अब इस लॉ को हम अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर वेरी हंग्री, फाइन, एंड यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड बाइंग अ पिज्जा. एज वी नो, इन पिज्जा देयर आर 6 most of the time there are 6 slices. So because you are hungry, you directly jump over the first slice और आप अपनी first slice लेंगे. You will get some satisfaction, and that satisfaction means the utility you are getting from the first unit. So you will आपकी जो utility जो होगी, अब आपकी टेंडेंसी है कि आप सेकेंड जो स्लाइस है उसको भी आप कंज्यूम करोगे. You will keep on increasing the slices. आप क्या है अपने slices का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दोगे. The time will come, ऐसी एक स्टेज आ जाएगी that your stomach will be filled. It means आपकी जो appetite, जो आपकी hunger जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है, वो completely satisfy हो गई. And उसके उस point के बाद आप क्या बोलोगे कि मैं इससे ज़्यादा और नहीं खा सकता. चाहे उसके बाद आपके प्लेट में 2 slices बची हो, 1 slice बची हो, that doesn't matter to you. आप ये बोलेंगे कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता. So that point जब आपको ये लग रहा है कि आपकी satisfaction जो है वो मैक्सिमम हो गई है, ठीक है, जो हमारा एग्जांपल है हम ये लेके चल रहे हैं कि आपकी जो हंगर जो थी वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो गया है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी. इट मींस यू आर गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. लेकिन अगर उस पॉइंट के बाद भी अगर आपने कंजम्पशन करना स्टार्ट किया है, कंजम्पशन कंटिन्यू रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है. और हम इसको इकोनॉमिक्स टर्म में बोलें कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. तो एक बार हम अपना इस टेबल की तरफ देख लेते हैं. सो आई हैव रिटन those 6 slices like units first, second, third, fourth, fifth and sixth. So total utility, now you can see जैसे जैसे मैंने अपनी कंजम्पशन जो है हर स्लाइसेस का, हर यूनिट का इंक्रीज किया है, हमारा जो TU जो है it keeps on increasing, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज होता जा रहा है. एंड एट द 4th यूनिट इट विल बी 20, ठीक है, एंड 5th यूनिट अगेन इट विल बी 20. आपका जो मतलब जो यहाँ पे TU जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. और हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा ही है कि MU हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इन द फर्स्ट यूनिट इट विल रिमेन सेम 8, इन द सेकेंड यूनिट 14 minus 8 6, and then 18 minus 14 it will be 4. हम 1 का करते जाते हैं 4. then 20 minus 18 it will be 2. then 20 minus 20 it will be 0, ठीक है. तो ये जो 0 है, जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा,
This point is known as the point of satiety. Point of satiety. It means the consumer is getting the maximum satisfaction. अब उसके बाद भी जैसे हमने पिज्जा वाले एग्जांपल में लिया कि उसके बाद अगर आप और स्लाइसेस का कंज्यूम करते हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे. सेम अगर हम उसके बाद भी कंजम्पशन कर रहे हैं तो यू कैन सी हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गया है एंड अल्टीमेटली हमारा एमयू जो है वो नेगेटिव हो गया. ठीक है. नाउ अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे डिनोट करें, ड्रॉ करें, सो दिस विल बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस का हमारा पॉजिटिव साइड है. दिस इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ वाई एक्सिस. दिस इज द नेगेटिव ऑफ वाई. नाउ on this one we have taken on x axis we have taken the units, जितने units हम consume कर रहे हैं, and on y axis we have taken mu. So you can see जो हमारा ये after plotting the points you can conclude the conclusion कि हमारा mu जो है it is moving from upward to downward. ठीक है, upward से ये downward की तरफ जा रहा है and at unit 5th हमारा mu क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद हमारा mu क्या हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द लॉ. हमारा लॉ यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है सक्सेसिव यूनिट. सक्सेसिव मीन्स नेक्स्ट यूनिट और मार्जिनल भी क्या होता है हमारा एडिशनल यूनिट. ठीक है. तो mu की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी. कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है और mu की वैल्यू क्या है वो डाउनवर्ड जा रही है, कम होती जा रही है. एक पॉइंट पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी. ठीक है. जीरो कब होगी जब आपका टीयू उस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम होगा और उसके बाद हमारा mu क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. नाउ अब हमने ये लॉ तो पढ़ लिया है. अगेन this law is based on various assumptions. अब वो assumptions क्या हैं? Let us read those assumptions one by one. एक बार discuss कर लेते हैं हम उन assumptions को. First assumption is that we have to consider, we have to take cardinal approach. हमने अपनी previous video में ये बात discuss करी थी कि utility के regarding there are two approaches और जो हम mu की बात कर रहे हैं this is totally based on cardinal approach. It means utility can be measured and it can be expressed in cardinal numbers like 1, 2, 3 and 4. ऐसे numbers जो हैं उन numbers में हम utility को express कर सकते हैं. So this is the first assumption that you have to take. The second assumption is that consumer is rational. Rational means he is taking each and every decision wisely. हर चीज वो सोच समझ के अपना वो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे उसको रिगार्डिंग कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, अपना कमोडिटी की बात करें, कुछ भी वो डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग दैट कमोडिटी, तो हर डिसीजन वो कैसा ले रहा है वाइजली ले रहा है. थर्ड, कंज्यूमर इज हैविंग द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को बिल्कुल भी, कंज्यूमर इज completely unaware about the market conditions. नहीं, he is having the complete knowledge, the perfect knowledge of market. वो हर चीज का क्या कर रहा है, पहले मार्केट रिसर्च कर रहा है. The point where he is getting the maximum satisfaction regarding the commodity, he is buying that from that place. Fine. The fourth assumption is regarding the consumption कि जो हम जिस commodity का जो हम consumption कर रहे हैं that should be in a continuous base. Continuous way means ऐसा ना हो कि आपने पिज्जा की 2 slices जो है वो पहले ले ली हैं, ठीक है, then you are having a gap of some hours और उसके बाद आप फिर से slice को consume कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो है DMU है वो applicable नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो आपने कंटिन्यूस कंजम्पशन नहीं किया, ये जो आपने बीच में ब्रेक लिया है, हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी जो एपेटाइट, जो आपकी हंगर है वो क्या हो जाए, बढ़ जाएगी. ठीक है. तो हमारा उस 2 आवर्स के बाद जब आप वापस अपनी फर्स्ट स्लाइस को जब कंज्यूम करोगे तो उस केस में आपकी जो MU है वो कम नहीं होके वो क्या होगी, ज्यादा होगी. तो सिंपल, आपने जो भी कंजम्पशन करना है
वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए. The next assumption is that the commodity that you are taking, that you are consuming, it should be of reasonable quantity. ऐसा ना हो कि आपको भूख तो बहुत सारी लगी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत तेज भूख लगी हुई है, एंड यू आर ऑर्डरिंग अ मिनी पिज्जा. तो वो मिनी पिज्जा तो रिलेटेड टू योर एपेटाइट, रिलेटेड टू योर हंगर, तो ये क्या होगा हमारा, मतलब कंपैरेटिवली ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा. तो जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट assumption is that the consumers income is fixed. ऐसा ना हो कि आज उसकी इनकम कुछ और है और विद इन 2 or 3 days और विद इन 15 days उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है, और जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका जो एक बाइंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी. तो हमने ये मान के ये एज्यूम करके चलना है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो क्या है, फिक्स्ड है. ठीक है. एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज आल्सो विल रिमेन कांस्टेंट. उनके प्राइस, कमोडिटी के प्राइसेस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे. So these are the various assumptions that you have to write, that you have to consider. अगर ये assumptions आपकी मतलब आप लिखेंगे, only then your this law will be applicable. Otherwise the value of this law is null. ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं. So this is all about the law of diminishing marginal utility. कंजम्पशन बढ़ाना है, यूटिलिटी MU जो है आपकी वो डिक्रीज होनी है. कैसे होनी है, मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल बताया है. यू हैव टू रिलेट योर टेबल विद दैट डे टू डे जो हमने अभी डिस्कस किया पिज्जा वाला एग्जांपल, उससे रिलेट करना है. यू हैव टू ड्रॉ द स्केड्यूल, टेबल बनानी है, देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव दिस MU आपका पॉजिटिव, देन 0 एंड देन नेगेटिव, एंड देन यू हैव टू राइट assumptions also कि ये हमारा जो लॉ है कौन सी assumptions पे बेस्ड है. Like my video if you find it fruitful to you, and share it with your friends so that they will also come to know about all these things. Thank you so much.